Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great and I hope your Diwali was really good and we are back after the Diwali kind of break and you're ready for the exams. So we are going to discuss how to prepare for NLSAT, that is the exam for NLSIU Bangalore 3 years LLB course, right? In 5 months from zero. So the exam is expected, like mostly the exam takes place in the end of April, right? तो हमारे पास नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो पूरा ही है, बट अप्रैल भी मिल जाता है, बट हम अज्यूम करके चलेंगे दैट 1 अप्रैल इज आर एग्जाम. दिस इज एन अजम्पशन, अज्यूम. ठीक है ना, हमारी प्रिपरेशन ऐसे होगी. ओके. Now, in this video, what is the agenda? Number one, the agenda is obviously discussing about the syllabus, the pattern of the exam, then how to prepare for each and every section, what should be the timetable like, right? And yeah, all of that. And also some other questions. First question is 5 months enough? Are these many months enough for your preparation for NLSAT? Yes. The syllabus of this exam is minimum, but yes, you have to study in depth, and how you have to study that we are going to discuss for sure. But yeah, it is not heavy on number of topics. There are limited number of topics. So you can prepare for this exam, but yes, I want to tell you that you cannot go for, like, you have to go for certain shortcuts, right? For example, for current affairs, you will have to take shortcuts which cover your syllabus also, but they don't miss out on anything, but they covered the syllabus. So the quick fixes, I'm going to tell you what are those, right? And yeah, let's begin with the video. And if you have any doubts, you can ask me in the comment section. You can also message me, DM me on Instagram. I'm there by the name I'm Lokiri. The chats on Instagram are completely free, but if you want to talk to me directly on call, one-on-one session, you can book. That is a paid session. Again, the link of the how to book the session and all of that is in the description box below. Okay, so let's get started. So this exam has two parts. There is part A and then there is part B, right? So part A is basically your MCQ type of questions are there, and the topics that you have to prepare in part A are reading comprehension, you have to prepare your current affairs, and you have to prepare for critical reasoning. 75 marks for part A as well as part B. 75. Okay. Part B is subjective, that is answer writing part. There are two types of questions that are asked here. One is one essay you have to write, and 5 legal answers you have to write. So the exam is quite lengthy, so that is why practicing mock tests is very important. So you have to keep time for yourself to ensure that you practice mock tests, because time management is a very important thing that you have to do for this exam, for any exam. Okay, 0.5 marks are cut if you don't attempt the question, if you attempt the question wrong. So it's better that you attempt the question wrong and get them cut. So you have to attempt all the questions, right? And then if you do well in part A, your part B will get checked. Yeah, answer writing is going to get checked, but your merit list is going to be A plus B. That is part A plus part B together are going to, your score is going to be taken, and then you are going to be added to the merit list. So that's how it is counted. So what is part B? Part B has legal aptitude, legal reasoning questions of which you have to write answers, right? And then you have essay writing, जिसको ये लोग analytical reasoning बोलते हैं. ठीक है ना? अब यहाँ पर कैसे क्या करना है, ठीक है? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंग्लिश. इंग्लिश हैज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एंड द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आर इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन. सो हाउ यू हैव टू प्रिपेयर? योर स्टेप 1 is that you're going to pick up one topic, one type of question for say 2 to 3 days or maybe one day, and you're going to do a deep research on how to solve this type of reading comprehension question. You're going to get various tips and tricks, you're going to make notes of them, and then you're going to pick reading comprehensions from CLAT PYQs, and you're going to attempt, like for example, if today I'm preparing the inference type of questions, I'm going to find the passage which has inference type of question, I'm going to solve it, and then I'm going to go to the reasoning that okay, this is how, this is the reason that I have to choose this option. Okay, this. So you have to get a good book of PYQs. You can get Gautam Puri, right? CLAT PYQs you solve, right? For each and every type of question you're going to do this, for reading comprehension as well as critical reasoning also, right? Same for critical reasoning also, right? Now this is very important. The biggest mistake that students commit
is that they directly go to practice without knowing how to solve. They just assume कि inference का मतलब ये होगा, main idea का ये होगा, which is not right, right? If you're good with your vocabulary, that can be of great help. So you can start reading the Hindu by yourself. You can read the editorial section for just 30 minutes every day, and ensure you have to take out 5 new words from there and try to, learn those words. If you do this much, that's more than enough, right? And if you can follow Edugiri and do the vocab part, that's great. But as of now, as I told you, I'm going to give you some shortcut, quick fix. So this is a quick fix, okay, to improve your vocabulary. Now this is what you have to do. And for reading comprehension, you can you can completely depend on the tips and tricks online, and you have to buy the CLAD PYQs book, okay? So this is what you have to do. Then we have current affairs. Now the beauty of current affairs is that it is there in part A also, and it is there in part B. Only subject that is there in both the parts, right? Now in part A it is going to be in the form of MCQs. In part B you have to write an essay. That the topic is going to be from current affairs. Now what are the topics like? Okay, the topics are mostly like from the contemporary issues, like the present issues that are in news. Now you need to remember one thing. What they have really made clear in the guidelines is that candidate will be required to write an essay of not more than 500 words. So you have to write an essay which is of 500 words, right? And then they will be tested on their knowledge of the issue. Do you know about the issue or not? That is facts. And I know a lot of you, like maximum students, know about the issue and they are able to write well about it. The problem lies here: the ability to make cogent written arguments and the ability to write a well structured essay. Now this is a very, very big problem, to make arguments that are backed by reason. Now students, first of all, they don't make arguments, they don't give an opinion, and very less are able to give a reason for it. So opinion backed by reasoning is very, very important, okay? That is what you have to do. Now how to prepare for it? For both of them, for current affairs, for both the sections. Now the theory part is common for both of them. Theory is common. You have to cover the from June 2025 till April 2026. Yeah, this is what you have to cover. Please don't ask for shortcuts, that can I start from December, can I start? No shortcuts. You have to cover these, please. You have to read the theory, okay? And you need to ensure that you understand the theory, because as I told you कि सबसे difficult part क्या रहता है कि वो arguments backed by reason. आप ओपिनियन नहीं दे पाते हो, रीजन नहीं दे पाते क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया. अंडरस्टैंडिंग इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. हैविंग नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू रिवाइज दीज नोट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड इफ यू नॉट एबल टू रिवाइज योर नोट्स, लुक, इन ऐसे राइटिंग आपको खड़े पैर सारे सब कुछ सोचना है. एटलीस्ट अगर आपने 15-20 चीज़ें पढ़ी उस टॉपिक से रिलेटेड, तो कम से कम आपको 10 तो याद आनी चाहिए 2-3 मिनट में, और वो तभी होगा अगर आपकी रिविजन है, ठीक है? तो नोट्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. थ्योरी पार्ट इज सेम, ओके. मूविंग ऑन, देन दिस इज द स्टेप 1, ओके. आई एम गोइंग टू राइट इट विद सम अदर पेन. वेट. स्टेप 1, थ्योरी पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है? स्टेप 2 आ जाता है. स्टेप 2, अब आपको MCQs के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, MCQs, ठीक है? और आपको एसे राइटिंग के लिए, पार्ट बी के लिए आपको एसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? यू हैव टू प्रैक्टिस एसे राइटिंग. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. एंड रिविजन, लाइक यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर रिवाइजिंग. आपने हर एक मंथ को एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स रिवाइज कर लेना है बाय एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है ना? अब यहाँ पर शॉर्टकट कैसे मारे, कहाँ से करें हम अपनी थ्योरी, MCQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एसे राइटिंग. सो हियर इज द थिंग. आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते थे, बट अभी मैं नहीं बोलूँगी ये करो फॉलो, ठीक है ना? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम, जब अप्रैल आ जाएगा तब आप फॉलो करो, ठीक है ना? क्योंकि तब एकदम से मैं आई प्रोवाइड टिल द एंड ऑफ द टाइम आपको मिलेगा. अगर आपने मेरे कोर्सेज ज्वाइन करे हुए हैं तो वहाँ पर आपको न्यूज़ मिलता है, बट फिर भी आप एजुगिरी को तब फॉलो करना. अभी आप अपनी क्योंकि पीछे जाओगे, डेली लेक्चर्स देखोगे, यहाँ पे डेली लेक्चर्स होते हैं, नहीं इतना टाइम है हमारे पास, ठीक है? विजन IAS या फिर कोई और मैगजीन या कोई यूट्यूब चैनल जो कि प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, क्योंकि आपको इन ऑल न्यूज़ चाहिए. सारी की सारी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि MCQs और ऐसे दोनों करने हैं,
ठीक है ना। तो हर टाइप की न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। सो आपको क्या करना है, आपको www.loggery.in पर जाना है। मंथली वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं वहाँ पर, वो खरीदने हैं। ये आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे क्योंकि 7 to 8 आवर्स के ये लेक्चर्स होते हैं। इनको आप देखो, यहाँ पे डिजी नोट्स भी प्रोवाइड करे गए हैं और मैं छोटू नोट्स भी बनवाती हूँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब जब आप लिखते लिखते पढ़ते हो, एक तो आपका फोकस कहीं नहीं जाता, फुल फोकस रहता है। दो, आपको लगेगा कि यार क्या ही लिखवा रहे हैं, बहुत बोरिंग है। नहीं, अगर आप देखो, आपको करंट अफेयर्स, जब आप बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हो करंट अफेयर से, आप पढ़ते नहीं हो डेली, आपको इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, आपको नहीं पता इंडिया चाइना का क्या चल रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत पता होगा इंडिया पाकिस्तान का क्या चल रहा है, इंडिया यूएस का क्या चल रहा है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द थिंग, ठीक है ना, तो एकदम से इंटरेस्ट बनेगा भी नहीं। तो आपको अपने माइंड को फोर्स करना पड़ेगा कि आप वो चीज़ पढ़ पाओ, राइट। और अगर आपका हैंड चल रहा है, आपका आई जो है वो फोकस कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना, और आप देख रहे हो और आप लिख रहे हो, तो आपका मसल माइंड कनेक्ट बनता है और जिससे आपको लिखने की वजह से ही 60% क्लास में ही याद हो जाएगा, और 30% जब आप वो क्लास देख करके रिविजन करोगे, और बाकी का बाकी जो आपको 94 to 95% याद करना है, जब आप रिविजन करते रहोगे बार 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 बार, तो वो याद रहेगा। तो लिख कर बहुत ज़रूरी है करना, एंड यू कैन डू इट। स्टूडेंट्स हैव डन इट। बच्चों ने ये वाले नोट्स 15 डेज में देख करके ये पेपर दिया है, पेपर क्लियर किया है, तो आप भी कर सकते हो। बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलती है स्टोरी फॉर्मेट में, ठीक है, रिमेंबर करवाने की, याद करवाने की पूरी मेरी कोशिश होती है। दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। आप इसका डेमो लेक्चर अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना, loggery.in पर प्रोवाइड किया हुआ है। अगर डेमो लेक्चर ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं इसे कमेंट्स में पिन कर दूंगी। दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। अब जो MCQs हैं, ठीक है, loggery.in के, ठीक है, मंथली MCQs प्रोवाइडेड होते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से दिए हुए, ये आपके, ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस MCQs की, ये वाला पार्ट भी हो गया। ऐसे राइटिंग के लिए आप हमारे कोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी हैव ऐसे राइटिंग के लिए कोर्सेज जिसमें आपको आंसर राइटिंग सिखाई भी जाती है थ्रू गाइडेड वीडियो लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड होते हैं। आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से कभी भी वो वीडियोस देख सकते हैं, दोबारा भी वीडियोस देख सकते हैं। प्लस आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं जो कि मैं वर्ड टू वर्ड चेक करती हूँ। आंसर राइटिंग कोर्स मिलता है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड आंसर राइटिंग चेकिंग होती है, ठीक है, जिससे हमें आपको पता चलता है क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। आपको इंस्टा कनेक्ट मिलता है, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होते हो, जहाँ पर मैं आपको सब चीज़ें बताती हूँ। जो इंस्टा पे नहीं है उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस करती हूँ मैं। एंड साथ ही में इनर सर्कल कॉल्स भी होती हैं जो कि लाइव गाइडेंस सेशंस हैं। इनर सर्कल कॉल्स के लिए हम बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते हैं, दीज आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमारे कोर्सेज हैं। तो आप NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स ले सकते हो जिसमें आपको एस्से राइटिंग और लीगल आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, पर्सनलाइज चेकिंग मिलती है, आंसर राइटिंग कोर्स मिलता है, 10 to 15 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलते हैं जो कि मोर देन इनफ है। ये ₹7,000 के हैं, वेरी वेरी अफोर्डेबल, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर गेटिंग। और इनर सर्कल कॉल्स इसमें मिलती हैं जिसमें आप मेरे साथ लाइव Q&A में जुड़ते हो, अपने इश्यूज पूछ सकते हो, और जो भी बच्चे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं उनके अराउंड मैं वो क्लासेस लेती हूँ। एंड वी ट्राई टू हेल्प इन एवरी पॉसिबल वे, ठीक है ना। आपको बहुत बहुत कुछ मिलता है, मैं बहुत कुछ फ्री में प्रोवाइड करती हूँ। ये तो प्रोवाइड है ही है, बट एक्स्ट्रा बहुत कुछ मिलता है। बहुत बच्चे एंड में ये कोर्स लेते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग। आप अभी लीजिए और अभी से धीरे 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 सब कुछ प्रैक्टिस करिए और जो जो मिल रहा है उसका यूज़ करिए। NLSAT के मॉक टेस्ट हैं हमारे पास, पार्ट ए और पार्ट बी के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। इसमें भी आपको पार्ट बी की पर्सनलाइज चेकिंग मिलती है, ये ₹10,000 के हैं। उसके बाद आपको NLSAT मेगा बंडल मिलता है जिसमें ये दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, मतलब जो ये है और ये दोनों कोर्सेज मिल रहे हैं। प्लस आपको इसके अंदर करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं और करंट अफेयर्स MCQs भी मिलते हैं, ठीक है ना। पूरे जो आपको चाहिए होते ये मिलते हैं। इसकी कॉस्टिंग 21,800 आती है, बट 15,000 में आपको ये मिल रहे हैं। देखो अगर आप ये भी लेते हो ना अलग से तो 17,000 का पड़ता है, बट यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स और करंट अफेयर्स के MCQs जून से लेकर के मंथ ऑफ एग्जाम तक 2026 तक मिल रहे हैं, 15,000 में मिल रहा है ये, ठीक है। और अगर आप AIT के लिए प्रिपेयर करें और NLSAT के लिए, दोनों के लिए, और आपको AIT का भी आंसर राइटिंग कोर्स चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स चाहिए, तो आप 25,000 का ये कोर्स ले सकते हैं। ये 33300 का मिल रहा है जिसमें NLSAT का ये सब कुछ, जो NLSAT मेगा बंडल है ये इंक्लूडेड है इसमें। एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है करंट अफेयर्स, एक्स्ट्रा मिलते हैं क्योंकि AIT में जनवरी से करंट अफेयर्स करने होते हैं, जनवरी 2025 से। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, और AIT के जितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट ये मिल रहे हैं, ठीक है।
तो ये आप बाय कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी क्वेरी आप कमेंट्स पे पूछे, कोई भी क्वेरी है इंस्टाग्राम पे पूछिए, एंड ऑल्सो यू कैन व्हाट्सएप मैसेज अस। अगर आपको कोई भी बाइंग से रिलेटेड क्वेरी, आपको कुछ भी बाय करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है वेबसाइट पर, ठीक है, कोई पेमेंट में दिक्कत है, हम हर टाइप के आपके पास आपको पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 8968461351। ओनली व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज अलाउड, प्लीज़ व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करिए, ठीक है, एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज, ठीक है, ओके। अब आगे चलेंगे। तो ऐसे में ये क्या इवैल्यूएट करते हैं, आपकी नॉलेज, आपने कितना पढ़ा है, कि क्या पब्लिक डिबेट चल रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट टॉपिक पे आप क्या क्लियर कंक्लूजन्स दे सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट्स पे, क्या आप सजेशंस दे सकते हो कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों पे आपको वो टेस्ट कर रहे हैं, और ये सब कुछ आपको हम ऐसे राइटिंग में सिखाते हैं। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड, जो कि पार्ट बी के अंदर है, ठीक है ना। ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब आप मत पढ़ो लॉ, बट मैं कहूँगी कि आप पढ़ो। आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी की थ्योरी जो है ना अच्छे से पढ़नी चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्व करना चाहिए कि अच्छा लॉ क्या है, कैसे है, बिकॉज आंसर राइटिंग में ये बहुत हेल्प करता है। आप इसके लिए LAN LR बाय विली की बुक में से कर सकते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टॉर्च का हमारा कोर्स भी है loggery.in पर, वो भी आप बाय करके उसके लेक्चर्स देख करके फटाफट से चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन। ये बुक मैंने प्रोवाइड करी हुई है loggery.com पे, वहाँ पर जा कर के आप ये बुक में से ये वाले टॉपिक्स जो पर्टिकुलर मेंशन किए हुए हैं ये पढ़िए। नहीं समझ में आना ना एक टॉपिक को 10 टाइम्स पढ़ते रहिए जब तक समझ में नहीं आता। दिस इज द ओनली वे टू डू क्रिटिकल रीजनिंग। प्रैक्टिस आपने PYQs ऑफ क्लैट में से करना है, वही सेम बुक जिसमें से आप इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें से क्रिटिकल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 1-2 बुक्स जो हैं, मतलब बुक्स कम ही लगती हैं इसके अंदर। अब हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स को अटैक करना है, करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड, क्योंकि करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड करोगे तो साथ साथ में आपका प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा फॉर आंसर राइटिंग, ठीक है। साथ ही में आपने आंसर राइटिंग के कोर्स के लेक्चर्स देखने हैं, कोई इनर सर्कल कॉल जो हो रखी है पुरानी वो भी देख सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने स्टार्ट कर देने हैं। आपने ट्राई करना है कि महीने में आप 3 प्रैक्टिस टेस्ट एटलीस्ट सॉल्व करें। नहीं खत्म होंगे प्रैक्टिस टेस्ट आपके, बट अगर आपने मतलब बहुत बच्चे पता क्या ऐसे सेव करके रखते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट ना खत्म हो जाए, नहीं खत्म होते, आप सॉल्व तो करो, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने स्टार्ट कर देने हैं, पहले दिन से स्टार्ट करो, मतलब पहला दिन जो आपने स्टार्ट करना है ना उस दिन आप प्रैक्टिस टेस्ट ही सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स देखो और प्रैक्टिस टेस्ट दो। फिर उसके बाद आप अपनी करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स देखो, थ्योरी पढ़ो, अच्छे से समझो, प्लस नोट्स बनाओ। एंड आपने थ्योरी कैसे लेक्चर्स कैसे देखने हैं, 30 मिनट्स देखा, नोट्स बनाए, उसके बाद 20 मिनट उन नोट्स को अच्छे से याद किया, ठीक है, क्या क्या चीज़ें भूल रहे हो, अच्छे से विद फुल फोकस आपने लेक्चर्स देखने। ये 30 मिनट्स और 20 मिनट्स का, ये जब तक कर सकते हो उतना करो, जो भी दिन का आपका टारगेट है। एंड साथ ही में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीडिंग करनी स्टार्ट करो, लेक्चर्स देखने, लेक्चर्स देखो, एंड ये ऑब्जर्वेशन करते हुए रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जर्व करो कि अच्छा सिचुएशन ये थी, अच्छा इन्होंने ये बोला है, ओके ओके ओके, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। एंड उसके बाद करते कराते यू हैव टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग योर प्रैक्टिस टेस्ट प्लस रिसर्च ऑन टॉपिक्स। अब रिसर्च ऑन टॉपिक्स के लिए टॉपिक्स कहाँ पे मिलेंगे, देखिए जब आप मेरे वीडियो लेक्चर्स लगाएंगे वहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स बताती रहूँगी साथ साथ में, ठीक है। तो वो वाले टॉपिक्स प्लस आप जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं वहाँ पर आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, वो टॉपिक्स पे आपको रिसर्च करना है। इवन अगर आपने जो ऐसे अटेम्प्ट किया है ना, 2 में से 1 अटेम्प्ट करो, उस पर भी रिसर्च करना है कि यार मैं और क्या बेटर लिख सकती थी। एंड इससे राइटिंग नोटबुक लगानी है जिसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंटर्स लिखने हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है, नोटबुक लगानी है इससे राइटिंग की। उसके बाद ये सारा करते रहेंगे, ठीक है। एंड रिवाइज करना है करंट अफेयर्स को, मैंने बताया ना 5 to 10 टाइम्स आपने नोट्स रिवाइज करने हैं बार बार, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब बाय जनवरी दिसंबर यू आर डन विद योर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मतलब करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, ये डन हो गया, टॉपिक्स भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जनवरी के आपके पास 20 डेज हैं, और फरवरी, इसके अंदर आप अपना ऐसे राइटिंग रिसर्च कंटिन्यू रखोगे। जो करंट अफेयर्स नए आ रहे हैं वो आप कंटिन्यू रखोगे पढ़ना, पुराने वाले रिवाइज करते रहो। मतलब इसके अंदर आप पता क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि ड्यूरिंग मतलब वन आवर
आप दे दो करंट अफेयर्स को रिविजन के लिए, जो भी पढ़ा है 1 आवर to 2 आवर्स। कभी कभी आप ऐसे राइटिंग लिखोगे, अगर नहीं कर रहे हो तो रिसर्च को टाइम दोगे, एंड फिर बाकी का 2 आवर्स का जो टाइम है वो आप अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग को दोगे। अगर ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है। एंड फिर मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करोगे, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि येस वी आर गोइंग टू फॉलो दिस शेड्यूल? ठीक है, कॉमेंट्स में प्रॉमिस लिख कर जाना। एंड येस, डू एनरोल फॉर आर कोर्सेज, बहुत अफोर्डेबल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चेकिंग होगी। मैं पर्सनली चेक करूँगी, ऐसे कोई रैंडम टीचर नहीं चेक करने वाला है। ठीक है ना? एंड या सभी जो लिंक्स हैं इन कोर्सेज के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड यस, करंट अफेयर्स लेना है अलग से वो भी मिल जाएगा, करंट अफेयर्स MCQs अलग से मिल जाएंगे। loggery.in जो वेबसाइट है वो ज़रूर विजिट करें। ठीक है ना? एंड या कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पर DM करें, IM Loggery के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपको NL-SAT से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे डिटेल सिलेबस वीडियो, डिटेल बुक्स कौन सी पढ़नी है वो वाली वीडियो, या फिर कोई और वीडियो जो आप डिटेल जानना चाहते हैं, बहुत वीडियोस बनाई हैं लीगल के लिए कैसे पढ़ना है इन डेप्थ जहाँ पर बात कर रही हूँ, उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड या किसी और एग्जाम से रिलेटेड ज़रूर बताना इन द कॉमेंट्स। एंड येस, एक और मैं शॉर्टकट बहुत क्विक वाला सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा टाइम रिविजन के लिए रहे, अगर वो वीडियो चाहिए तो मैं शॉर्ट्स में लेकर आऊँगी, वो कमेंट्स में बता देना। एंड फॉर शॉर्ट्स डू फॉलो अस ऑन Instagram एज वेल एज यूट्यूब। सबसे पहले शॉर्ट्स यूट्यूब इंस्टा पे डलती हैं, बिकॉज वहाँ पे डल जाती हैं, ठीक है, फटाफट से। तो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज फॉलो अस ऑन Instagram। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।